Good morning, SY. So let's continue the organometallic compounds. Okay. So in this video, we are going to discuss the organomagnesium compound and their properties and synthesis ये सब देखते हैं, ठीक है, और reactions भी देखेंगे. ओके. सो सबसे पहले बता दूं, दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ये जो है कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं ग्रिडनॉल रिएजेंट. ठीक है. सो दिस सो लेट्स सी ग्रिडनॉल रिएजेंट क्या होता है, देखते. सी हियर ग्रिडनॉल रिएजेंट जो है, दीज आर दी अल्काइल या फिर अराइल मैग्नीशियम हेलाइड ग्रुप है. ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो. ठीक है. इसमें एक आर ग्रुप रहेगा यानी कि अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप रहेगा, और मैग्नीशियम ग्रुप रहेगा, और एक ग्रुप रहेगा हेलाइड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं ग्रिडनॉल रिएजेंट. ओके. So this grignard reagent represented as you can see are MgX. Okay. So X chlorine, bromine या फिर iodine रहेगा. Okay. So let's see some example of it. Okay. So these are the important example. जो भी आपको image में दिख रहा है वो important examples है. ठीक है. So सबसे पहले इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है. ठीक है. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और विनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, cyclohexyl magnesium chloride. So these are the four important example of this Grignard reagent. Okay. So let's see the preparation of this organomagnesium compound. So here the preparation. Okay. So this Grignard reagent are prepared by direct reaction. ये एक direct reaction है किस किसके बीच में, organic halide and magnesium metal in the presence of anhydrous ether at room temperature. Okay. Preparation are very simple. ठीक है. Condition आपको याद रखना है, और ये कैसे prepare करते हैं वो आपको याद रखना है. Okay. It is very important. Okay. So very simple. Grignard reagent are prepared by direct reaction between organic halide and magnesium metal in the presence of anhydrous ether at room temperature. Okay. So here some example you can see in the image. Ethyl bromide in the presence of this magnesium. ठीक है. It gives diethyl in the presence of diethyl ether. ठीक है. It gives ethyl magnesium bromide देता है. Okay. सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है. जो भी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, डेफिनेशन दे रही हूँ, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. MCQ में भी आएगा. ओके. सो ये सब नोट डाउन कर लो कि इफ़ यू हैव बुक देन इट्स ग्रेट. ओके. सो सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी cyclohexyl chloride. It gives the cyclohexyl magnesium chloride. These are the very simple reaction in the presence of diethyl ether at 35 degree Celsius. Okay. So these are the two examples of this preparation of organomagnesium compound जिसको हम बोलते हैं Grignard reagent. Okay. So let's see the next one, which is reactions of this Grignard reagent. Okay. So सबसे पहले देखेंगे reaction with compound. वो compound जो that containing acidic hydrogens. ठीक है. चलिए देखते हैं. So here one more example of this Grignard reagent. ठीक है. So phenyl bromide in the presence of THF, it gives phenyl magnesium bromide. Okay. So at 65 degree Celsius. Okay. So चलिए देखते हैं reactions. सबसे पहले देखेंगे reaction with compounds. वो compound जो acidic hydrogen है जिसमें. Okay. So इसमें क्या होता है, you can see here there are some points. So here what happens, due to nucleophilic character of this Grignard reagent, they can abstract a proton from a weakly acidic molecules, जैसे कि water, alcohols हो गया, ammonia हो गया, acetylene compounds हो गया. ऐसे compounds क्या होता है, ये जो ग्रिग्नल रिएजेंट है ये अब्स्ट्रैक्ट करता है किसको, प्रोटॉन्स को. इवन किस प्रोटॉन को, जो वीकली एसिडिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, अमोनिया हो गया, एसिटिलीन कंपाउंड्स हो गया. ये क्योंकि ग्रिग्नल रिएजेंट का जो कंपाउंड है वो क्या है, ये जो रिएजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, इसके लिए एक्सट्रैक्ट करता है उस एसिडिक मॉलिक्यूल्स को. ठीक है. सो ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स. जैसे कि एग्जांपल आप देख लो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करता है, इट गिव्स बेंजीन. ठीक है. ये बेंजीन देता है in the presence of water molecule. Okay. So this is the first example of this reactions of Grignard reagent with those
the compound containing acidic hydrogens. Okay, here, so this Grignard reagent also gives the ethane and ethanyl magnesium bromide in the presence of ethyne. Okay, so second example, you can see here ethyl magnesium bromide in the presence of ethyne, it gives ethane, and also ethanyl magnesium bromide data. Okay, so these are the two important example of these reactions with compounds that containing acidic hydrogens. Okay, so let's see the next one. So here the next one, reaction with carbonyl compounds. चलिए देखते हैं. Carbonyl compounds वही aldehyde and ketone के साथ रहेगा. Okay. So here what happens in this reaction when this Grignard reagent react with this aldehydes and ketones, it gives alcohols. जब aldehyde के साथ ये react करता है तो ये क्या देगा, secondary alcohol देगा, और ketone के साथ react करेगा तो tertiary alcohol देगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपको जानना ज़रूरी है, ये रिएक्शन जो है ये फास्ट रिएक्शन है. फास्ट रिएक्शन वाई, बिकॉज ऑफ दिस जो नेचर है कार्बोनाइल कार्बन का, वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है. So what happens here, this reaction is very rapid reaction due to the electrophilic nature of the carbonyl carbon. So generally the mechanism, जो mechanism involved है इस reaction में, यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है. कहाँ से, अल्काइल ग्रुप से. ठीक है, अल्काइल ग्रुप का एक पार्ट जो है, अल्काइल का पार्ट जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है किसको, कार्बन, जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है उस पे होता है, वो क्या फॉलो करता है, वो एडिशन करता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट, किसको, ऑक्सीजन एटम. okay, so it gives the addition complex, and after this addition complex ये क्या करता है, it is on acid hydrolysis, फिर ये देगा alcohol देगा. okay, so this is about a very simple the reagent react with this carbonyl compounds. ठीक है. And one more thing, see here the main part of this reagent जब react करता है carbonyl compounds पे, तो इसके कुछ applications है. वो क्या है, यानी कि जो reaction होता है इस Grignard reagent का, सबसे पहले अगर formaldehyde के साथ हुआ तो ये क्या देगा, it gives primary alcohol. If it react with aldehyde, it gives secondary alcohols. okay, while it react with ketones, it gives tertiary alcohols. okay, so let's see the next one, which is the reaction with carbon dioxide, cyanides and epoxides. okay, सबसे पहले देखेंगे reaction with carbon dioxide. see here what happens, जब ये Grignard reagent react करता है किसके साथ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस के साथ, ये क्या देगा, एसिड देगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. ठीक है. तो यहाँ पर हेलो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होता है. कब फॉर्म होता है, व्हेन रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो जब हेलो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होगा, ये क्या करेगा, अगेन इट अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस which gives the carboxylic acid. okay, so this is the important exam. You can see the example below है given. Reaction with carbon dioxide जो first है, that is for the reaction with carbon dioxide. okay, so कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब Grignard reagent रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. जब वो साइनाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कीटोन देगा. ठीक है. और जब इपॉक्साइड के साथ वो रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल देगा. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, विच इज अ रिएक्शन विद साइनाइड्स. So here you can see the second reaction, that is reaction with cyanide. See, इस reaction में क्या होता है, जो cyanide group है, CN group है of this alkyl cyanides, ये क्या है, it is less reactive towards the nucleophile. ओके, सो इसकी वजह से ये क्या होता है, स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, विद दिस नाइट्राइल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन दिस साइनाइड ग्रुप. ठीक है. सो इट गिव्स कीटोन्स थ्रू एन इंटरमीडिएट जिसका नाम है इमिन. ओके, सो यहाँ पर कीटोन फॉर्म होता है विद दिस रिएजेंट and with the cyanide group. okay, in the presence of ether. okay, so it gives ketones. That reaction is very important. okay, and at last
it upon the hydrolysis it gives the ketone group. Okay, so let's see the next one, which is the reaction with epoxide. See, epoxide जो है वो थ्री मेंबर्ड रिंग है, जो थर्ड वन है दैट इज थ्री मेंबर्ड रिंग. So यहाँ पर it is heterocyclic ring, three membered ring. So what happens, this ring with an oxygen atom, ये क्या है, it is unstable है, this ring is unstable, hence they are highly reactive. ये जो stable रहता है वो लेस रिएक्टिव रहता है, ठीक है, जो अनस्टेबल रहता है वो हाईली रिएक्टिव रहता है, क्योंकि ये रिंग जो है, जो थ्री मेंबर्ड रिंग है इपॉक्साइड जो है CH2, वो सी हेड जो है इट इज अनस्टेबल एंड हेंस इट इज highly reactive. So Grignard reagent क्या करता है, it adds to this ring of ethylene oxide and it gives and it produces on hydrolysis primary alcohol. ये क्या देगा, primary alcohol upon the hydrolysis. Okay, so you can see the example, these are the important example. Okay, note down these example. Okay, so that's it about the organomagnesium compound. तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड. ओके, सो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर वेरी सिंपल. यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में विच कंटेन्स है कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू लिथियम ग्रुप. इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, एंड ये जो कंपाउंड है दे में भी अराइल लिथियम रहेगा या फिर अल्काइल लिथियम रहेगा. जैसे कि एग्जांपल यू कैन सी फिनाइल लिथियम इज एन एग्जांपल, एन ब्यूटाइल लिथियम इज एन एग्जांपल, मिथाइल लिथियम इज एन एग्जांपल. ओके, सो दीज एग्जांपल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. तीनों एग्जांपल्स अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो, ये भी शायद एग्जाम में आएगा. ओके, so this is about the introduction of organolithium compounds. Let's see the next one, which is preparation of organolithium compound. सबसे पहले देखेंगे preparation synthesis by using alkyl halides और aryl halides को इस्तेमाल करते हुए. ठीक है, एंड उसके बाद reactions देखेंगे. चलिए देखते हैं. ओके, सो हियर द टू प्रिपरेशंस. सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड्स, पहला वाला रिएक्शन, और दूसरा वाला जो ब्रोमोबेंजीन है दैट इज फ्रॉम द अराइल हैलाइड्स. ओके, सो पहले जो रिएक्शन है दैट इज synthesis of this organolithium compounds by using this alkyl halides. ठीक है, alkyl halides in the presence of lithium metal in कंडीशंस में क्या है, ड्राईहेक्सेन है एट -10 डिग्री सेल्सियस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो क्या देता है ये देता है इथाइल लिथियम देता है. ओके, सो एंड वन मोर एग्जांपल इज देयर, जिसे एन ब्यूटाइल क्लोराइड देता है एन ब्यूटाइल लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशंस. ओके, सो सेकेंड रिएक्शन जो है ब्रोमोबेंजीन दैट इज फ्रॉम द अराइल हैलाइड्स. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ दिस. So यहाँ पर phenyl lithium that is prepared by this action of lithium from lithium on the bromobenzene in dihexane, same रहेगा condition. ठीक है, so these are the two simple preparation of this organolithium compound. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो reactions है. these are the similar to that फर्स्ट वन जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड में था उसी पे सिमिलर है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, सेम वही जो पहले था विथ दोज कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, और रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स और साइनाइड्स, इपॉक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं. यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ या फिर अल्कोहल के साथ. ठीक है, रिएक्ट करता है और ये देता है अल्केन्स देता है. तो यहाँ पर मीथेन दिया है, मिथाइल लिथियम विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मीथेन दिया है. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन विथ कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन. ओके, सो नेक्स्ट वन रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड्स. यहाँ पर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स, यहाँ पर अल्काइल लिथियम रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ to form a higher alkanes. Higher alkanes भी आ गया है in the presence of hexane, you can see in the reaction. Okay, so listen here students, these are the very simple reaction. आपके लिए बहुत ही simple reaction है कि प्रीवियस ईयर में 12th में आप लोगों ने ये सब देख चुके हो. ठीक है, तो ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शंस है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ, जैसे सिमिलरली हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखे थे जब वो रिएक्ट किया था अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जैसे कि अल्कोहल दिया था, वैसे ही यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर क्या होता है,
when this reaction of this organolithium with this formaldehyde, it gives primary alcohols, okay, on the hydrolysis in the presence of hexane. Okay, you can see the reaction and note down that the product it has given that 1 pentanol, that is primary alcohol, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है कीटोन के साथ, ये भी सिमिलरली वैसे ही देता है टर्शरी अल्कोहल, जैसे कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम में देता था, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल 3 रिएक्शंस एंड 2 more are there, that is रिएक्शन विथ अल्काइल साइनाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड इपॉक्साइड के साथ दिखते हैं, ठीक है। लेट्स सी दैट, ओके। And one more example, you can see that reaction with this aldehydes, it gives secondary alcohol, जो कि product दिया है 1-phenyl ethanol, ठीक है। So यहाँ पर this reaction with aryl halides क्या दिया है, it gives in the presence of hexane, it gives 1-phenyl ethanol, ठीक है। तो ये secondary alcohols है that is obtained by the reaction of organolithium compounds with other aldehydes group, ठीक है। So that's it. Let's see the next one, which is reaction with alkyl cyanides. So you can see, I think it's a little bit blur, okay, but it's okay, it can be visible. So here the fourth one, that is reaction with alkyl cyanides, okay. So यहाँ पर क्या होता है, alkyl, very simple, alkyl lithium जो react करता है alkyl cyanides के साथ कीटोन देता है, ठीक है। So यहाँ पर product दिया है in the presence of hexane, it gives 2-butane, okay. सो नेक्स्ट जो है, लिसन हियर स्टूडेंट्स, इतना स्पीड में मैं बोल रही हूँ बिकॉज दीज आर द वेरी सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा है आपका सिलेबस मुझे कंप्लीट करने के लिए, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग अ लिटिल बिट स्पीड, ओके ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई फास्ट टीचिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट मच फास्ट, ठीक है। एक ही रिएक्शन मैंने एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ, ओके। सो प्लीज़ नोट डाउन दीज एग्जाम्पल इन योर केमिस्ट्री नोटबुक, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, यहाँ पर इट गिव्स एन एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग द सेम 1:1 रेशियो। यहाँ पर क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है कौन सा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सेन, इट गिव्स एन एसिड दैट इज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, ठीक है। सो दैट्स okay. One more example is there, that is sixth one, reaction with epoxide. epoxide मैंने पहले ही बताया था, it is heterocyclic 3-membered ring compound है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जब ऐड होता है इस epoxide को, ताकि वो रिंग ओपन हो जाए, जो क्लोज ओपन रिंग है 3-membered रिंग, वो ओपन हो जाए। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल मिलता है वो ऑन हाइड्रोलिसिस पे मिलता है, and these primary alcohols having 2 additional carbon atoms, you can see in this reaction, ठीक है। so these are the very simple reactions, note down these reaction, okay। so that's it about this chapter, which is organomagnesium and organolithium compound, okay। so in the next video we're going to discuss the fourth chapter, जो कि alcohols, phenols and epoxides है। one more thing students, you have to listen now, जो चैप्टर है, यानी कि फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर जो है इसमें से, यानी कि पेपर 1 में जो लास्ट चैप्टर बचा है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एपॉक्साइड्स, इसके बाद हम लोग शायद एनालिटिकल में जाएंगे, ओके। सो इसमें से अल्कोहल्स में हम लोग प्रिपरेशंस देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़। Similarly, we'll see the phenols as it is same, that is preparation, properties and reactions, and also we'll see the same in the epoxides also, okay। So that's it for today. Let's see in the next week about alcohols, phenols and epoxides, okay। Thank you students.